So our today topic is identifying the quadratic equation and solving the quadratic equations. So first is how to identify that a given equation is a quadratic equation. So first of all, I will write the equation of the expression for the quadratic equation. So our quadratic equation, that is ax square plus bx plus c is equal to 0, where A, B, C, they are real numbers, and this x is variable. So this is a second order quadratic equation, because you see the highest power of x is 2, so it's a second order equation. Now in this equation, it is necessary a cannot be equal to 0. a 0 नहीं हो सकता. So अगर a 0 हो जाए, so it means जो बाकी हमारे पास बचा bx plus c is equal to 0, so ये quadratic नहीं होगा. But if b 0 हो जाए, if b is equal to 0, b 0 हो जाए, so हमारे पास जो बचा ax square plus c is equal to 0, ये quadratic रहेगा. So quadratic equation के लिए A, B, and C, they belongs to the real number, and it's a second order equation. A cannot be equal to 0, but if A is equal to 0, it means it's not a quadratic equation. But if we take B is equal to 0, this is B is equal to 0, then whatever left, that is treated as a quadratic equation. So let us see one equation. It is 2x square plus 3x plus 4 is equal to 0. So this is quadratic equation. You see that this is a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4. So this is quadratic equation. But if we take 2x cube plus 3x plus 4 is equal to 0, here a is equal to 2, b is equal to 3, c is equal to 4, but we are given x cube, so it's not a quadratic equation. It's not a quadratic equation if cube is given. It's a second order equation, second order x raised to the power 2. It's a second order equation. So this is the identification of the quadratic equation. Now how to solve the quadratic equation, that is the main thing. How to solve? So basically there are two methods in your class 10th mathematics to solve any quadratic equation. Two methods are there. So our today discussion is about the first method, which is called the factorization method. So before going to the factorization method, so let me write what are the two methods. So solution of the quadratic equation can be given by two methods. Solution of the quadratic equation that can be given by two methods, and the first method is called factorization method. Factorization method, and the second method, it is called by the formula. By the formula. So in today's lecture, our focus is on the factorization method, on this method. So today we will do this. So let us understand the factorization method with the help of an example. So there is a rule for that, but before going to the rule, directly we will understand the factorization method directly with the help of the questions. If we just read the rules, then it will be very difficult to solve the question. But if we directly solve the question and then try to understand what are the rules, then that will be a better option. So let me take one question. It is 3x square plus, 3x square minus 14x, 3x square minus 14x plus 8 is equal to 0, minus 14x plus 8 is equal to 0. So find
solution of this quadratic equation, this is a quadratic equation having power 2, a is equal to 3, b is equal to minus 14. So I can write a is equal to 3, b is equal to minus 14, and c is equal to 8. So this is a quadratic equation. A is equal to 3, b is equal to minus 4, c is equal to 8. And we are asked to find the solution. Find the solution of this quadratic equation. या तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए फाइंड द सॉल्यूशन, या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं और फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. फाइंड द रूट, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो इट्स अ सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है. सो x में है तो इसके x के दो रूट होंगे, x की दो वैल्यूज होंगी, x की दो वैल्यूज होंगी, एक को मान लो x1, एक को मान लो x2. सो यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी. सो ये जो दो वैल्यूज हैं, these are the roots of the quadratic equation और these are the solution of the quadratic equation. ये इसके solution होंगे या इसके ये root होंगे. तो हमें ये root कैसे निकालने हैं? We will take the help of the factorization method. So let us write the solution. So by factorization method. So let us understand what this method is. So in this method, this 8, which is a constant, it is multiplied with the coefficient of x square, and the coefficient of x square, it is 3. So it becomes 24. So this becomes 24. Now do the factor of 24. Now how we can do the factor of 24? So this becomes 2 and 12. So we can do the factor by 3 and 8 also. So that is also 24. Now what is the rule? What is the rule? You see this part, the coefficient of x, the coefficient of x. Focus on the coefficient of x. Now that we have the two factors, one is 2, another is 12, and in this one is 3, other is 8. So we can take only those values, only those factors which will give me this number 14 after addition. So in दो का अगर ऐड करें, हम इन दो नंबर को अगर ऐड करें तो हमें ये जो कोफिशिएंट ऑफ x है ये मिलना चाहिए. So देखो, अगर मैं 2 और 12 को ऐड करूं, सो मेरे को 14 मिलने के चांसेस हैं. 2 और 12 को अगर ऐड करें, सो कैसे ऐड करेंगे? अगर मैं इसको -2 रख लूं, इसको भी -12 रख लें, तो मेरे पास -14 आ जाएगा. बट इफ आई ऐड 3 and 4, सो किसी भी तरीके से कुछ भी करें, मेरे पास 14 नहीं आएगा. सो फैक्टर तो ये भी है 2 and 12, फैक्टर ये भी है 3 and 8. सो चूज क्या करना है हमें वो फैक्टर चूज करना है. फैक्टर्स में वो वैल्यूज हमें चूज करनी है जिनको ऐड करने के बाद कोफिशिएंट ऑफ x हमें मिले. सो सबसे पहले हमें कांस्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है. सो हमें मिला 24. उस 24 के फैक्टर जनरेट करने हैं. फैक्टर ऐसे जनरेट करने हैं कि जिनको अगर ऐड करें सो हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए. जिनको अगर ऐड करें सो हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाए. सो यहाँ देखो, हमारे पास 2 था, 12 था, अब इनको ऐड करना है. अब अगर डायरेक्टली ऐड करें, ये माइनस के साइन ना लगाएं, तो हमारे पास आ रहा है +14, बट यहाँ पे है -14. सो कैसे करेंगे? तो इसका मतलब हमें दोनों वैल्यूज माइनस में लेनी पड़ेंगी. इसको भी -2 लेना पड़ेगा, इसको भी -12. ये हमें अपनी कॉमन सेंस से, अकॉर्डिंग टू द रूल, हमें ये चीज डिसाइड करनी है कि क्या प्लस कब होगा, माइनस कब होगा. दिस इज ओनली द गेम ऑफ आवर कॉमन सेंस. ये तो हो ही नहीं सकता 3 and 8, क्योंकि 3 और 8 को ऐड करके कोफिशिएंट ऑफ x तो आएगा ही नहीं. सो एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं इसको. सबसे पहले हम इस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 24. अब उस 24 के फैक्टर हमें करने हैं. सो फैक्टर करने के दो तरीके हैं, एक तो 2 और 12 से हो गया, एक 3 और 8 से हो गया. सो अब इसमें से दोनों में से चूज किसको करें? तो हमने इसको चूज करना है. कैसे? क्योंकि दो फैक्टर्स को, इन दो नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिलना चाहिए. सो अगर मैं डायरेक्टली +2 + 12 करूं तो मेरे पास +14 आएगा, बट यहाँ तो -14 है. सो वो कैसे आएगा? अगर मैं दोनों के साथ माइनस साइन लगा दूं तो मेरे पास -14 आ जाएगा. सो लेट अस प्रोसीड.
सो क्या हो गया मेरे पास अब ये 3x² माइनस 12x माइनस 2x प्लस 8 is equal to 0. Now I can take 3x outside, 3x outside, so it becomes x minus 4. And from here I can take minus 2 outside, so it becomes x minus 4 is equal to 0. So अब यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने सही रास्ता चुना है या नहीं. सी दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, अगर ये दोनों पार्ट एक जैसे हों इसका मतलब हम सही सोल्यूशन निकालने में कामयाब हो जाएंगे. सो ये इसकी एक अल्टरनेट मेथड है कि बीच में भी हम चेक कर सकते हैं कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. सो x माइनस फोर दोनों में आ गया. सो अब इसमें से एक x माइनस 4 हम रखेंगे और बाकी हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो अब यहां से सोल्व करेंगे हम इस पार्ट को भी सोल्व करेंगे और इस पार्ट को भी, इसको भी 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे और इस पार्ट को भी 0 के इक्वल रख के सोल्व करेंगे. सो अब इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 4. सो यहाँ x का एक वैल्यू मेरे पास आ गया, मींस इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट मेरे पास आ गया. अब मैं सेकंड निकालता हूं इसके लिए 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0. सो 3x इज इक्वल टू 2. सो x इज इक्वल टू 2/3. ये मेरे पास सेकंड रूट आ गया. सो हम इसको फर्स्ट रूट बोलते हैं, इसको हम सेकंड रूट बोलते हैं, या इसको बोलेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन और ये हो गया सेकंड सॉल्यूशन. सो हमारे पास कोई भी इक्वेशन है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंड करता है कि उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है. सो यहाँ हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है. सो इसके मैक्सिमम एट द मोस्ट 2 ही सॉल्यूशन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा सॉल्यूशन इसके हो ही नहीं पाएंगे. ओके, सो दीज आर दी 2 सॉल्यूशन. अब हम चेक कर सकते हैं कि ये हमारे सॉल्यूशन हमने निकाले, ये सॉल्यूशन हमारे सही भी हैं या नहीं. सो कैसे चेक करेंगे. सो ऑलरेडी हमने अपने पहले लेक्चर में, इससे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम किसी भी रूट को रखें, हमारे पास 2 रूट मिले, सो किसी भी रूट को अगर हम रखें सो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू को 0 होना चाहिए. सो लेट मी चेक. सो दिस इज ए टेस्ट, दिस इज ए टेस्ट. सो अब एक टेस्ट करते हैं. सो हमारी इक्वेशन क्या है, 3x² माइनस 14x प्लस 8. अब इसमें पुट x इज इक्वल टू 4, पुट x इज इक्वल टू 4. सो दिस बिकम्स 3 into 4 square minus 14 into 4 plus 8. So this becomes 48 minus 56 plus 8. So this becomes equal to 0. So it means ये रूट तो चेक हो गया कि ये रूट बिल्कुल सही है, ये x इज इक्वल टू 4 बिल्कुल करेक्ट है. नाउ इसके लिए चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2/3. सो पुट x इज इक्वल टू 2/3. सो 3 into 2/3 का स्क्वायर माइनस 14 into 2/3 प्लस 8. सो इसको लिख सकते हैं 3 into 4/9 माइनस 28/3 प्लस 8. इसको भी हम सोल्व करेंगे, दैट विल कम इक्वल टू 0. सो दोनों केस में 0 हमें मिलेगा, इसका मतलब बिल्कुल हमने सही रूट निकाले. सो दिस इज द फैक्टराइजेशन मेथड. लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. So another question is, we are asked to solve
solve 4x, solve 4x, and we are given the quadratic equation x square plus 3 minus 2a into x minus 6a is equal to 0. So थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दिखने में लगेगा. सो फर्स्ट आई विल मेक इट सिंपलर इक्वेशन. सो सिंपलर इक्वेशन फॉर्म करने की कोशिश करते हैं. सो इस इक्वेशन की जो ब्रैकेट वगैरह है सब कुछ हटाएंगे और इसको एक सिंपलर इक्वेशन के फॉर्मेट में लेके आएंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस, so multiply this 3 with x, so this becomes 3x. Multiply this minus 2a with x, so this becomes minus 2a into x, and this is minus 6a is equal to 0. So अब इसको हमें सिंपलर इक्वेशन करना है. So अब फोकस करते हैं इस पार्ट पे सेपरेटली और फोकस करते हैं इस पार्ट पे सेपरेटली. So I can take x outside, so this becomes x plus 3. Now from here I can take minus 2a outside and this becomes x plus 3. अब देखो इसको हमने सिंपलर फॉर्म में कर लिया और यहाँ से हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो हमने सोल्यूशन निकालना है वो सोल्यूशन हम निकालने में सक्सेसफुल होंगे या नहीं. सो बिकॉज x प्लस 3 यहाँ पे भी है, x प्लस 3 यहाँ पे भी है, सो इसका मतलब वी विल गेट द राइट सोल्यूशन. सो x प्लस 3 दोनों में से एक को चूज करेंगे एंड x माइनस 2a इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 0. सो अब दोनों को 0 को इक्वल प्लेस करेंगे. सो x प्लस 3 इसको भी 0 को इक्वल रखा और x माइनस 2a इसको भी 0 को इक्वल रखा. सो दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू माइनस 3 फर्स्ट सॉल्यूशन एंड दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 2a द सेकंड सॉल्यूशन. सो अब इसको हम टेस्ट कर सकते हैं सेम मेथड से. यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर हम x की जगह अगर माइनस 3 रखें, सो the whole equation that will become equal to 0. Similarly, if we place x is equal to 2a, the whole equation that will again become equal to 0. So this is the testing method. So let me take another question. थोड़ा सा complicated question लेके चलते हैं. So we are doing factorization method. बहुत easy है, बहुत easy method है. और करना क्या है मैंने आपको बता ही दिया इसके अंदर कि जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके फैक्टर करेंगे और फैक्टर करने के बाद हमें चेक करना है कि जो फैक्टर करने के बाद जो दो फैक्टर हमारे पास आए हैं उनका सम कोफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर होना जरूरी है. आदित्य, अनुष्का, समझ में आ रहा है? आदित्य, अनुष्का? यस सर. ओके ओके, वेरी गुड. सो एक दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेके चलते हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके चलेंगे और उससे फिर हम देखेंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं. सो लेट मी टेक 7x plus 1, 7x plus 1 divided by 7x plus 5 is equal to 3x plus 1, 5x plus 1. So solve this and find its root and find its solution. बोले find its solution और find its roots. So सबसे पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. So क्रॉस मल्टीप्लाई करना इजी है बिल्कुल. So this will become 7x plus 1 and 5x plus 1 is equal to 7x plus 5 and 3x plus 1. उसके बाद हमें इसको मल्टीप्लाई करना है. सो 7x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बिकम 35x स्क्वायर
उसके बाद 7x को +1 से करेंगे, सो 7x। उसके बाद फिर 5x को 1 से करेंगे, सो दिस बिकम 5x एंड देन +1 इज इक्वल टू, राइट साइड में भी सेम यही करेंगे, 7x को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, सो दिस बिकम्स 21x², देन +7x +15x। सो अब देखते हैं, दिस बिकम 35x² एंड 7x + 5x 12x +1। तो अब लगता है कि ये तो क्वाड्रेटिक बन गई, लेफ्ट साइड तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई। राइट साइड को भी करते हैं, 21x², सॉरी ये +5 also, +5 so 21x² plus this is 15 plus this is 22 x plus 5, so this is 21x² plus 15x, and this is +7, 5 3s are 15x, and then 7x, and this becomes 22. Okay, so 21x² plus okay, this is 22x plus 5. Let me check it again. So 7 3s are 21x², then plus 7x, then plus 5 3s are 15x plus 5. Okay, so this is 21x² plus 15x plus 7x, so this becomes 22x plus 5 is equal to 0. Okay, so both are the now both are quadratic, so this is also a quadratic equation and this is also the quadratic equation. Now we can solve both the equations. So first I will solve the right hand and then I will solve the right hand. This is the one method. The second method is that take the right hand side quadratic equation into the left hand side. So what I will get, 35x² plus 12x plus 1 minus 21x² minus 22x minus 5 is equal to 0. अब 35x² minus 21x², so this becomes 14x². 35x² minus 21x², so this becomes 14x². 12x minus 22x, so this becomes minus 10x, and then minus 5 plus 1, this becomes minus 4 is equal to 0. So अब हमने इस कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को, जो कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थी, उसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्म तक तो ले आए। सो अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। ओके, सो अब मैं इसको एक बार दोबारा लिखता हूँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, और फिर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है। सो बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन को हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म तक लेके आने में हम सक्सेसफुल हो गए। तो अब इसका हमें रूट निकालने हैं। सो 14x² minus 10x minus 4 is equal to 0. So 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, सो कितना आ गया हमारे पास, 56, और अब 56 के फैक्टर करने हैं। सो 56 के फैक्टर करेंगे। सो फैक्टर ऐसे करने हैं कि हमारे पास ऐड करने के बाद 10 आ जाए। सो 4 into 14, सो अब देखो कि अगर हम ये प्लस के 4 लें और ये माइनस के 14 लें, तब हमारे पास इन दोनों को ऐड करने के बाद -10 आ जाएगा। सो अब इसको लिखेंगे 14x² minus 14x plus 4 minus 4 is equal to 0. साथ में x होगा 4x. Okay, so I can take 14x outside, so this becomes x minus 1, and from here I can take 4 outside and this becomes x minus 1 is equal to 0. अब देखो चेक करके, ये भी सेम आ रहा है, ये भी सेम आ रहा है, so इसका मतलब we are moving in the right direction. हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन बिल्कुल सही निकाल पाएंगे।
सो इस दोनों में से एक को चूज करेंगे, x माइनस वन को हमने कॉमन लिया, सो 14x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. नाउ मेक दिस आल्सो इक्वल टू 0, this also equal to 0. So first x minus 1 is equal to 0. So this will give me x is equal to 1. So this will give me x is equal to 1. So this is the first solution. And when I place 14x plus 4 is equal to 0, so I will get 14x is equal to minus 4 and x is equal to minus 4 upon 14. So this is 2 to the 4, 2 7 the 14. So x is equal to minus 2 upon 7. So again we get the 2 root x is equal to 1 and x is equal to minus 2 by 7. By placing these two roots, we can check that our quadratic equation, if our quadratic equation gives 0, then it means both the roots they are right. इसको भी x की जगह 1 प्लेस करके चेक करेंगे, अगर ये पूरा 0 आ जाएगा तो इसका मतलब ये रूट ओके है. इसको भी हम x की जगह प्लेस करके चेक करेंगे, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के इक्वल आ गई तो इसका मतलब ये भी इसका सही सॉल्यूशन है. सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन. ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं. सो जब ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाए रेशियो की फॉर्म में हो, सो सबसे पहला मेथड तो यही है कि उसको हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जैसे भी करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद बाय फैक्टराइजेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन करना है. सो लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन ऑफ सिमिलर टाइप. So we are asked to solve for x. Solve for x. And our equation is x minus 1 divided by x minus 2 plus x minus 3 divided by x minus 4. And this is given equal to 3 1 upon 3. And ये कंफर्म है, ये भी गिवन है कि x that is not equal to, x is not equal to, x की दो वैल्यू गिवन है कि ये दो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं हो सकती. x cannot be equal to 2, 4. सो इसको हम क्वाड्रेटिक में फॉर्म करेंगे. क्वाड्रेटिक में फॉर्म करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि ये इसके जो आंसर है वो 2 और 4 नहीं आएंगे. ये ऑलरेडी गिवन है कि इसके रूट 2 और 4 नहीं हो सकते. सो हमें फाइंड आउट करने हैं कि इसके रूट एक्चुअल में क्या होंगे. सो अब ये इक्वेशन को पहले हमें क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है. सो जैसे भी करो, कोई भी मेथड, मैथमेटिक्स के अंदर कोई एक ही मेथड फॉलो करना जरूरी नहीं है. There are so many methods by which we can do the mathematics. So यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन को हमें क्वाड्रेटिक तक लेके जाना है. So कैसे करेंगे क्वाड्रेटिक तक इसको? So सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं. So लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही रास्ता है कि एलसीएम लेके इसको सोल्व किया जाए, और राइट हैंड साइड में तो इजी है, इसको सिंपल फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे. 3 3 9 प्लस 1 10/3. सो ये तो हमारे पास सिंपल 10/3 हो गया. ये तो 10/3, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. 10/3 प्रॉब्लम है इसका. सो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को, और फिर उसको इक्वल टू 10/3 हम प्लेस करेंगे. सो टेक द एलसीएम x minus 2, x minus 4. So this becomes x minus 4 and x minus 1 plus x minus 3 and x minus 2. नाउ इस पार्ट को सोल्व करेंगे. इस पार्ट को सोल्व करना है तो पहले इसको x को इस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -4 को x के साथ, फिर -4 को -1 के साथ. सो लेट अस डू. x को x के साथ किया हमने, सो दिस बिकम्स x². उसके बाद x को -1 के साथ किया, सो दिस बिकम्स -x.
फिर -4 को x के साथ किया, दिस बिकम -4x, फिर -4 को -1 के साथ किया, सो दिस बिकम्स +4, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, सो -4 को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, सो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करने पे हो गया प्लस, एंड 4 into 1 हो गया 4, सो दिस इज +4, देन प्लस, अब x को फिर x के साथ करेंगे, सो दिस बिकम्स x², और फिर x को -2 के साथ -2x, -3 को x के साथ -3x, एंड फिर दोबारा -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो बन गया प्लस, 3 2 जा 6, सो प्लस के 6 डिवाइडेड बाय, अब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, x into x, दिस बिकम्स x², x into x, x² -4x -2x, and -2 and -4, this becomes +8, this become +8. So now और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, x² माइनस, दिस बिकम्स -x -4x -5x +4, so इसको ब्रैकेट में रखते हैं, प्लस x² -5x +6, इसको भी ब्रैकेट में रखते हैं, और डिनोमिनेटर को सोल्व करेंगे, x² -6x +8, सो अब हमारे पास ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में आ गई, तो इसके भी 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसके भी 2 सॉल्यूशन निकलेंगे, सो ऐसा देखो, इसके 2 सॉल्यूशन प्लस 2 सॉल्यूशन, तो 4 सॉल्यूशन डिवाइड बाय 2 सॉल्यूशन, सो अगेन अल्टीमेटली हमारे पास सॉल्यूशन आएंगे 2, और अब इसको हमने रख दिया इज इक्वल टू 10/3, सो अब करना क्या है, इसकी ब्रैकेट को हमने बेफजूल में यहाँ लगाया, इसको लगाने की जरूरत नहीं थी, सो अगर मैं इसको यहीं पे ही थोड़ा और, ये ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रैकेट लगाएंगे तो एक स्टेप और बढ़ जाएगा, सो ब्रैकेट को मैंने यहीं पे ही हटा दिया, और अब इसको मैं डायरेक्टली ऐड करने की कोशिश करता हूं, सो x² + x², दिस बिकम 2x², सो ये x² और ये x², so this becomes 2x², then -5 and -5, this become -10x, then +4 and +6, this become +10, this become +10, divided by x² -6x +8, x² -6x +8 इज इक्वल टू 10/3। अब बिल्कुल इजी है बच्चों, यहाँ के बाद का मेथड आप लोगों को पता है, इसके बाद हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे हमने अपने पिछले क्वेश्चन में किया था, उसके बाद फाइनली हमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को सोल्व करना है, राइट साइड को लेफ्ट में लेके आएंगे, जो ऐड होगा ऐड करेंगे, जो सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फाइनली हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगी। अब उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आपको आता है बाय द फैक्टराइजेशन मेथड, सो डू दिस क्वेश्चन, सो दिस इज योर होमवर्क, एंड जैसे ये आपका सोल्व हो जाए, सो सेंड मी द सॉल्यूशन ऑन माय व्हाट्सएप, ओके। सो टुमारो वी विल कंटिन्यू विद द सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड वी विल do more questions by the factorization method, okay Vansh, Ishant, Anushka, so that's all for today। कुछ स्टूडेंट आज लेट, काफी लेट स्टार्ट किया, ईशांत यू आर लेट, वंश यू आर आल्सो लेट इन टुडे लेक्चर, and Aditya, Anushka, okay students, that's all for today। Thank you sir, bye sir। Okay, bye। Thank you sir।